Hello, dear students. This is about class 4th English lesson 4 Rikki Tikki Tavi. First, we'll read the story for you and then explain it in Hindi, the story. It had rained heavily all night. Teddy, a young boy of 10, ran out into the garden. He saw a mongoose lying wet and still on the grass. Here is a dead mongoose. Teddy called out to his mother, "Let's bury him." "No," said Teddy's mother. "His heart is beating faintly. Perhaps he will live. Let's take him inside and dry him." Teddy's father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. The mongoose sneezed. Teddy and his parents were delighted. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. टेडी, एक 10 साल का बच्चा था, तेजी से गार्डन में दौड़ता हुआ आया और वहाँ उसने एक ऐसे मॉन्गूज को देखा, नेवले को देखा जो ग्रास पर स्टिल पड़ा हुआ था और गीला भीगा हुआ था. अरे यहाँ तो एक मरा हुआ मॉन्गूज है, मरा हुआ नेवला है. टेडी ने अपनी मदर को बुलाया. चलो इसे दबाते हैं. नो, टेडी की मदर ने कहा, इसका जो दिल है वो धीरे धीरे धड़क रहा है, शायद वो जिंदा हो. इसको अंदर ले जाके सुखा देते हैं. टेडी के फादर ने उसे एक पुराने गरम मफलर में लपेटा और आग के पास रख दिया. नेवला छींकने लगा. टेडी और उसके पेरेंट्स बड़े खुश हुए. They gave him some meat and then took him outside. He sat in the sun and shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush. Soon Teddy and the little mongoose became very good friends. The mongoose would run through the tall grass crying, "Rikki, Tikki, Tikki, Tikki." Teddy used to laugh at him and started calling him Rikki Tikki Tavi. उन्होंने उसे कुछ मीट दिया और बाहर ले गए. वहाँ सूरज की रोशनी में जब उसने अपनी लंबी सी फ्लफ़ी टेल हिलाई जो कि बॉटल ब्रश की तरह लगता था, जल्दी ही टेडी और वो मॉन्गूज, छोटा सा मॉन्गूज, अच्छे दोस्त बन गए. मॉन्गूज रिक्की टिक्की 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 की आवाज़ करता था तो टेडी ने उसका नाम हंसते हंसते रिक्की टिक्की तभी रख दिया. One morning, Rikki Tikki was wandering about in the garden. There he saw Nag, the big cobra, and his wife Nagina. Although Rikki Tikki was young, he knew that snakes were his enemies. Nag also knew that a mongoose in the garden meant death for him and his family. It was night. Teddy carried Rikki Tikki to his bed as usual. एक सुबह रिक्की टिक्की गार्डन में घूम रहा था. वहाँ पर उसने बड़ा सा कोबरा नाग देखा और उसकी वाइफ नगीना को भी देखा. हालांकि रिक्की टिक्की छोटा था मगर वो जानता था कि स्नेक्स उसके दुश्मन हैं. नाग भी जानता था कि गार्डन में नेवले का होना मतलब उनकी फैमिली की मृत्यु निश्चित है. रात हो चुकी थी. टेडी रिक्की टिक्की को बेड पर छोड़ गया था जैसे कि रोज़ छोड़ के जाता था. But as soon as the boy was asleep, Rikki Tikki went off for his nightly walk round the house. As he moved about, he heard a faint sound. He came from the bathroom of Teddy's parents. Rikki Tikki quickly entered the bathroom. He could hear Nag and Nagina talking on the other side of the bathroom door. Nagina was telling her husband, "Kill the 3 people in the house. The mongoose will go away when there is no one left. Then we will have the garden to ourselves." Rikki Tikki saw Nag slithering into the bathroom through the drain. Nag knew that Teddy's father would come to the bathroom around midnight. So he coiled himself up and went to sleep there. Rikki Tikki was hiding behind the door watching Nag. When Nag was fast asleep, Rikki Tikki jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. Nag was furious. He threw his head from side to side and Rikki Tikki was flung against the wall again and again. Rikki Tikki thought he was going to die. He was bleeding, but he didn't let go of his hold of Nag's head. लेकिन जैसे ही
टेडी सोने के लिए गया, रिकी टिक्की अपनी नाइटली वॉक लेने के लिए, जो कि वो रोज़ाना लिया करता था, चल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक हल्की हल्की सी आवाज़ सुनी जो बाथरूम से आ रही थी, टेडी के पेरेंट्स के बाथरूम से। रिकी टिक्की तेज़ी से बाथरूम के अंदर गया। वहाँ उसने नाग और नगीना को आपस में बात करते हुए सुना, और नगीना अपने हस्बैंड को बोल रही थी, इन तीनों लोगों को मार देते हैं, मॉन्गूस भी अपने आप चला जाएगा एक दिन, जब उसे कोई नहीं मिलेगा तब ये गार्डन हमारा हो जाएगा। रिकी टिक्की ने देखा नाग को स्लिदरिंग करते हुए, मतलब रेंगते हुए देखा। ड्रेन यानी जो नाली होती है ना, जहाँ से पानी बाहर जाता है निकासी की तरफ से, देखा बाथरूम के अंदर आते हुए। नाग जानता था कि टेडी के जो फादर हैं वो लगभग आधी रात में तो वो कुंडली मार के वहाँ बैठ गया और सोने का नाटक करने लगा। रिक्की टिक्की भी दरवाजे के पीछे छिप गया नाग को देखते हुए। जब नाग गहरी नींद में सो गया, रिक्की टिक्की एकदम उसके हेड पे कूद पड़ा और उसके अपने दोनों दांत जो थे वो सांप के फ्लैश, मतलब उसके मांस में गड़ा दिए। नाग भी ज़बरदस्त था, बहुत डरावना था। उसने अपना हेड साइड टू साइड फेंकना शुरू कर दिया और रिक्की टिक्की दीवार से लगने लगा जाके, मतलब पटकने लगा। वो नाग पटक रहा था उसको, और रिक्की टिक्की को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। रिक्की टिक्की ने सोचा वो मरने वाला है, उसको ब्लड निकलने लगा था, लेकिन उसने फिर भी नाग के सिर पे से अपना होल्ड नहीं छोड़ा। During the struggle, Nag's tail upset the mug and soap dish. They fell to the ground with a clatter. Suddenly, the wild struggling stopped. Nag's head dropped down and did not move. Teddy's father, who had entered the bathroom on hearing the noise, had shot Nag with his gun. Teddy's father picked up the bleeding Ricky Tikki and went back to his bedroom. He asked his wife to put some medicine on Ricky Tikki's wounds. I killed the snakes, he said, but Ricky Tikki saved our lives. Teddy's mother washed Ricky Tikki's wounds with medicine. She petted his sore head and gave him some toffees. Under her loving care, Ricky Tikki felt better, so he fluffed up his tail and ran off to Teddy's room. इस स्ट्रगल के दौरान नाग की जो पूंछ थी उसके अपसेट होने से मग और सोप डिश नीचे गिर गए। वो उससे गिरने से काफ़ी तेज आवाज़ हुई। अचानक वो जो उनका स्ट्रगल चल रहा था, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, नाग का जो हेड था वो नीचे गिर गया और हिल नहीं रहा था। टेडी के फादर जो बाथरूम में एंटर कर चुके थे, वो आवाज़ सुन के उन्होंने नाग को गन से मार दिया। टेडीज़ के पापा ने ब्लीडिंग होते हुए रिकी टिक्की को पिक किया, उठाया और बेडरूम की तरफ भागे। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ मेडिसिन लगाने के लिए कहा रिकी टिक्की के वुंड्स पे। मैंने स्नेक को मार दिया, उन्होंने कहा, लेकिन रिकी टिक्की ने हमारी जान बचाई है। टेडी की मदर ने रिकी टिक्की के जख्मों को दवाई से धोया, उसके सोर घायल हुए सिर को सहलाया और कुछ टॉफ़ीज़ दी। उसकी लविंग केयर में रिकी टिक्की ने बहुत अच्छा महसूस किया और अपनी टेल हिलाई और तेज़ी से टेडी के रूम की तरफ भाग गया। The story is completed. This story is adapted from Rudyard Kipling's collection. Okay.